session that all of you have been waiting for and have been grabbing seats for that is with a firecracker actor known for his dashing good looks and hardworking nature. He made his debut at the age of 19, while I think he was still in engineering college. We'll figure that out. Well, that's right. We have, in fact, as a special treat for you all, ladies and gentlemen, we would like to welcome on stage in a candid session Kartik Aaryan, Unplugged, champion of 2024, and he's going to be in conversation with Navika Kumar. A big round of applause, ladies and gentlemen. I don't think he'll come quicker if we don't clap harder. So a huge round of applause, please. It's our last and final session. So once the claps reach him, he will enter. Louder. If you want him faster on the stage. Okay. He's right behind us. Okay. Tell her that. Over to you, Navika. Thank you, Hina. Thank you, Aisha. And Kartik Aaryan, do I get an opportunity to shake your hands? And ladies and gentlemen, are we just losing it? Can we really hear it? Can you give it up for the man who brings in those big ones at the box office? Are you everybody's favorite yet, Kartik Aaryan? Thank you so much, ma'am. Thank you for the lovely introduction. I think I would like to believe that, and I would like to actually wherever I go, मैं अभी आपको वही बोल रहा था कि मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा मेरे आसपास सबका फायदा बहुत हो रहा है. So I hope that continues, and right now I'm too excited to be here in Delhi and amongst you guys. So thank you for having me here. Thank you very much for being here at the India Economic Conclave. It's the 10th edition. We've been doing this for 10 years, just like you've been delivering hits for the last, I don't know how many movies. But this year, Chandu Champion and then Bhool Bhulaiya 3. बस जेबों में कितना भरा हुआ है ये बता दो. आज everybody wants to know from you. 400 करोड़ से ऊपर तो भूल भुलैया 3 है. So क्या कहते हैं आपके प्रोड्यूसर्स आपको? I think अगली कौन सी कार खरीदनी है, कौन सी कार? But नहीं, just kidding. I think मेरे प्रोड्यूसर्स बस मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का ये साल गया है 2024, I think मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ईयर रहा है प्रोफेशनली, और मुझे ये बहुत यादगार साल है और मुझे ये हमेशा के लिए याद रहेगा. आई एम सो, मतलब मैं अभी यही सोच रहा था कि 20 दिन बचे हैं बस ये साल खत्म होने में. रुक जाए, थम जाए ये साल. थम जाए थोड़ा सा. लकी साल है, बहुत लकी साल है. आई वांट दिस ईयर टू कंटिन्यू. तो एंड बट आई कैन ओनली होप दैट 2025 एंड द सब्सिक्वेंट ईयर वो भी ऐसे ही जाए जिस तरीके से ये गया है. और लास्टली मतलब 2024 में जिस तरीके से भूल भुलैया 3 ने अभी कमाई की, जिस तरीके से वो फिल्म के वी वर रियली नर्वस जब फिल्म रिलीज हो रही थी. क्यों? वो होता है, थोड़ा सा जिटरी होता हूँ मैं, थोड़ा सा रिलीज के पहले थोड़ा सा नर्वस एनर्जी आ जाती है. एक्साइटमेंट भी था, लेकिन फिर भी बहुत आई थिंक ऐसा लग रहा था कि दिवाली में ये रिलीज होना, क्या लोग थिएटर्स जाएंगे, देखेंगे, यू नो, इट जस्ट थोड़े बहुत चीजें आती हैं, बहुत सवाल आते हैं, अननेसेसरी सवाल आते हैं. बट इट वर्कड आउट रियली वेल, and the kind of records or the reception that we got for the film, it's unreal and unbelievable. So I'm thankful to the audience and fans. Fantastic, fantastic. Coming from a youngster, coming from somebody जो outsider माना जाता था. मैं पहले तो आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने गाड़ियों की बात की. कितनी गाड़ियां हैं, कितने मोटर बाइक्स हैं, गिने कभी? मेरे पार्किंग कम हो गई है, तो वो एक इंटरेस्टिंग बात थी कि लास्ट टाइम जब मैं कार खरीदने के लिए मम्मी से वापस से बोला था मुझे एक कार पसंद आई है, खरीदना है, तो उन्होंने बोला बेटा पार्किंग अब खत्म हो गई, अब कार बंद है इस घर पे. तो इवेंचुअली ये डिसाइड हुआ. मम्मी से परमिशन लेनी पड़ती है गाड़ी? बहुत बहुत बहुत. मेरे बाइक्स तो बंद हो चुकी है मेरे घर पे. अच्छा, कितनी बाइक्स हैं? मेरे पास हैं कुछ, मतलब मैंने गिनी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक नंबर. ठीक ठाक क्या होता है? 10, 12, दर्जन भर, 2 दर्जन? नहीं, मेरे पास 7-8 बाइक्स है. 7-8 बाइक्स. और गाड़ियां? वो भी उतनी होंगी.
अच्छा, कौन कौन सी याद रहता है कि मंडे इसमें, ट्यूसडे उसमें, कैसे घूमते हो, कैसे डिसाइड करते नहीं नहीं, मैं अभी अभी तो मैं एक ही गाड़ी में घूम रहा हूँ एंड इतना मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि कौन सी कार किस दिन। मैं एक बार मैं एक गाड़ी मतलब मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि ये अभी मैंने लास्ट खरीदी है तो मैं उसी के साथ कैसे बोलूँ कि मैं थोड़ा सा उसके प्रति लॉयल रहता हूँ उस गाड़ी के। अरे भाई अच्छा, कौन सी है ये लेटेस्ट जिसको इतना लॉयल्टी बोनस मिल रहा है? अभी ये लास्ट रिसेंटली मैंने एक रेंज रोवर ली थी एंड आई वाज जस्ट आई थिंक मैं बहुत टाइम से मुझे ऐसा था कि मुझे रेंज रोवर एक खरीदनी है और स्टेटस सिंबल है? नहीं नहीं नहीं, मेरे ड्रीम कार में से एक थी, एक लैम्बोर्गिनी थी, एक रेंज रोवर थी और एक मैक्लेरन थी। तीनों मेरे पास है अभी। सो ये मतलब बहुत टाइम से मेरा सपना ये है। लोग गिफ्ट करते हैं आपको? नहीं नहीं नहीं, क्या एक गिफ्ट खरीदते है, हो? एक गिफ्ट है उसमें से। और भूल भलैया के बाद कोई गिफ्ट मिली? हाँ, भूल भुलैया के बाद मुझे मैक्लेरन गिफ्ट की थी भूषण सर ने, आई थिंक। और एंड आई एम रियली थैंकफुल कि हाँ उनको इतना इतना आई एम रियली थैंकफुल टू दी फैंस एंड ऑडियंसेस कि उन्होंने इतना पैसे कमाए उनको कि उन्होंने मुझे भी कुछ गिफ्ट किया। भाई 400 सवा 400 करोड़ आप बनवा देते हो और उसके बाद 4-5-6 करोड़ की गाड़ी ले लेते हो। आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील। डू यू? इट्स नॉट अ बैड डील, ही शुड गिव मी अ जेट, कुछ प्राइवेट प्लेन या कुछ ऐसा मिलना चाहिए आई थिंक। प्राइवेट प्लेन मिलना कुछ चाहिए? ऐसा कुछ होना बिल्कुल, चाहिए। हसरतें हो तो ऐसी हो। जी, जी। कार्तिक, आई वांट टू आस्क यू, जी आपने 19 साल की उम्र पे प्यार का पंचनामा से शुरुआत की। जी। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, क्या सोचकर फिल्म इंडस्ट्री का ये शौक चढ़ा? फिल्में देख के मैं बचपन से ही मेरी फैमिली में या मुझे बहुत शौक था फिल्में देखने का और आई डोंट नो मतलब मैं कोई भी फिल्म नहीं छोड़ता था मैं एंड वो फिल्में देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता था ये तब मुझे समझ नहीं आता था कि प्रोफेशन क्या है, ये एक्टिंग क्या होती है। मुझे बस लगता था अच्छा ये हीरो है, ये हीरोइन है। मुझे नहीं पता था कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबके क्या क्या चीजें क्या क्या लोग करते हैं। बट आई यूज टू वॉच मूवीज एंड आई यूज टू थिंक कि हाँ फिल्में हैं, फिल्मों का पार्ट मुझे भी बनना है। तो कौन सी फिल्म बहुत इम्प्रेस की आपको? बाजीगर, आई थिंक दैट वाज वन फिल्म जिसकी वजह हार से के जीतने वाले को बाजीगर। बाजीगर कहते हैं। तो आई आप थिंक तो हारे ही नहीं, आप तो जीते नहीं, चले बहुत जा बार- रहे हो, तो आप बाजीगर स्क्वायर हो गए। नहीं, बहुत बार मैंने अपने पूरी जर्नी में कई बार बहुत सारे फेलियर्स भी देखे और उन्हीं से उभरते हुए सक्सेस भी देखी है। सो आई थिंक वो बस उतार चढ़ाव मैंने देखा है। एंड बिफोर द जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया भी था तो बहुत सारे रिजेक्शंस देखे थे और वो रिजेक्शंस में मैं हमेशा मतलब कभी भी बस ये था कि उन रिजेक्शंस तो होते थे लेकिन कभी भी ये नहीं सोचता था कि मेरे में कुछ कमी। मुझे लगता था इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है अभी, ये थोड़ा सा ऐसा लगता था कि इनको डाउट है तो ये इनका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है, मेरा शायद कभी ना कभी होगा। तो वो जद्दोजहद चलती रहती थी। मैं सोचता रहता था कि हाँ नहीं और ज्यादा मेहनत करूंगा, कुछ ना कुछ क्रैक होगा, कोई ना कोई ऑडिशन क्रैक होगा। एंड फाइनली प्यार का पंचनामा जो पहली फिल्म थी मेरी, उसका ऑडिशन क्रैक किया था। 2-2.5 साल मुझे लगे थे वहां तक ऑडिशंस में रिजेक्शन सुन सुन के एंड फाइनली ये हुआ मेरी लाइफ में। बट घर में कभी स्ट्रेस होता था? बिकॉज मम्मीज नॉर्मली होती हैं कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर बनने चाह रहा था, अब ये फिल्मों का भूत कहाँ से? उनको तो बताया ही नहीं था मैंने। मैं एक्चुअली उनके हिसाब से डीवाई पाटिल नवी मुंबई में पढ़ाई कर रहा था और बीटेक कर रहा था अपना। मैं यहाँ आया ही ये फैमिली को बोल के, क्योंकि मैंने एग्जाम सारे उन कॉलेजेस के दिए थे जो नवी मुंबई या मुंबई के आसपास हो, तो ताकि मैं ऑडिशंस दे पाऊँ, इंडस्ट्री के पास आ पाऊँ। तो ये मेरा एक तरीके से मुझे ऐसा लगता था उस टाइम कि बड़ा स्मार्ट तरीके से मैंने ये सोचा है कि फैमिली को जरा भी प्रेशर ना आए या उनको ये ना लगे कि हमारा बेटा इसको क्या हो गया है ये सडनली। बिकॉज उन्होंने उस टाइम मुझे लगता था कि सीधे मना कर देना था कि नहीं नहीं तू कुछ नहीं कर रहा, तू पढ़ाई कर, ये सब एक्टिंग क्या होती है, ये सब चीजें। आई थिंक दे वुड हैव नॉट अंडरस्टूड द फैक्ट दैट ये एक प्रोफेशन किस तरीके से, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे वहां पे, कुछ पता नहीं था, तो थोड़ा सा वो ऑफकोर्स वो घबराते कि ये क्या है। तो मैंने एग्जाम्स दिए थे वो कॉलेजेस के और उसमें से एक था डीवाई पाटिल कॉलेज, और जिस कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया उसकी एंट्रेंस एग्जाम मेरी क्लियर हो गई। एंड देन मैं यहाँ नवी मुंबई में रह रहा था, वहां से
मैं लोकल ट्रेन में मतलब ट्रैवल करता रहता था नवी मुंबई टू मुंबई, ऑडिशंस ढूंढता था गूगल में या फेसबुक पे, सर्च इंजन में डाल के कि एक्टर्स रिक्वायर्ड, या ऑडिशंस फॉर एड्स, ऑडिशंस फॉर फिल्म्स, ऐसी चीज़ें ढूंढता रहता था रैंडमली। उनमें से जो भी चीज़ निकलती थी वो चीज़ में मैं डायरेक्टली पहुंच जाता था अगर किसी ने इंटरनेट पे डाला होता था। तो मुंबई में बहुत ऐसे ऑडिशंस होते थे और वहाँ पहुंचता था। और And it took you 2 years. इट टुक मी 2.5 years, या ऑलमोस्ट 2.5 years. And your first check, जब साइन किया प्यार का पंचनामा? प्यार का पंचनामा में अराउंड 60,000 ऐसा था, 1 साल 1.5 साल के लिए। और 60,000 जी रुपए। हाँ। कभी ड्रीम किया था कि एक दिन रेंज रोवर आएगी मेरे पास? ड्रीम तो किया था मैंने, और बहुत बहुत सॉलिड तरीके से ड्रीम था मेरा कि हाँ नहीं, मुझे ये ऐसे कार्स खरीदनी है, या फिर मेरा ये रेंज रोवर खरीदूंगा किसी दिन, या फिर कुछ ना कुछ ड्रीम कार होती है लैम्बोर्गिनी, ये सब चीजें थी। बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स थे जो तो वापस गए उस नवी मुंबई के हॉस्टल में इन योर रेंज रोवर और लैम्बोर्गिनी के बॉस यहाँ से लोकल पर चलता था और अब लैम्बोर्गिनी लेकर आ गया हूँ? एक्चुअली मैं अपने पता नहीं, पुणे का रास्ता जब आता है तो कई बार ट्रैवल करता था, और मुझे कार को ड्राइव करने का बहुत शौक है। तो मेरा कॉलेज ऐसे बीच में 1-2 बार पड़ा था, तो फर्स्ट टाइम जब मैं ऐसे कार से गया था तो मेरे लिए फुल सर्कल हो गया था वो लाइफ का, कि यहाँ से मैं एक्चुअली या तो लोकल ट्रेन रहता था स्टेशन पे, या फिर वो शेयरिंग कार्स जाती थी हाईवे पे, तो उनमें वो 5 रुपए देके आपको वो पूरा मुंबई तक वहां तक पहुंचा देते थे। ऐसा ऐसा कुछ होता था वो शेयरिंग पे। तो ड्राइवर्स आते थे, वो ऐसे 7-8 लोग बैठ जाओ और आप कार से पहुंच जाते थे। तो फॉर मी इट वाज अ थिंग कि यार वहां से यहाँ तक की जर्नी वो पूरा एक रिकैप हो जाता है। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था जब मैं ऐसे पुणे के लिए ट्रैवल कर रहा था यहाँ से। आपको लगता है कि जैसे बॉलीवुड लोग सपने लेकर आते हैं, लेकिन सबके सपने सच नहीं होते हैं, आपके सच हुए? जी। फॉर्मूला क्या था? आज जो यंगस्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी अपनी जर्नी इज टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, हौसला चाहिए, और आप ठान लीजिए तो आप कर सकते हैं। कैसे किया, जरा शेयर करिए सबके साथ। एक सेट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे लिए वर्क किया वो ये चीज थी कि मैंने कभी भी अपने ऊपर इतना सेल्फ डाउट नहीं किया। मैं हमेशा से वो सेल्फ बिलीफ रखा कि कुछ भी हो जाए, कि मेरे में कुछ अगर मुझे लग रहा है कि कोई गलती है, किसी ने कोई पॉइंट आउट किया है, तो एक्टिव वो क्रिटिसिज्म भी मैं उसको पॉजिटिवली लेता था। मैं उसको अपने हार्डवर्क से उस चीज़ों को और बेटर करता था, और अपने ऊपर मेहनत, जेन्युइनली मेहनत करता था, और अभी भी वो करता हूँ। तो कोई भी चीज़, कोई भी कमी मुझे ऐसा लगती है तो मैं उस चीज़ को और बेटर करने की कोशिश करता हूँ। एंड वो चीज़ मेरे लिए बहुत वर्क की। तो जब मैं ऑडिशंस पे जाता था, हमेशा ये सुनता था कि यू आर अनफिट फॉर दिस रोल, या फिर नहीं, आप लाइन से भी निकाल देते थे। वो लाइन में भी नहीं खड़े होने के लिए टाइम होता था, बिकॉज हम लोग बहुत सारे लोग आते थे ऑडिशंस के लिए, उसमें से वो ऐसे होता है ना कि अनवांटेड लोगों को हटाओ, तो उनमें से मैं भी एक होता था। तो हम सबको ऐसे रिजेक्ट किया जाता था। और मैं अगर ट्रैवल करके कोई और भी ऐसे आता होगा, मैं भी जाता था, तो हम लोग 2-2 घंटा दूर से ट्रैवल करते थे, और फिर सिर्फ एक बार वो सुन के, अनफिट सुन के, वापस 2 घंटा की जर्नी करके घर जाना होता था, तो हॉस्टल। सो आई थिंक वो टाइम बहुत ऐसा खुद पे सेल्फ डाउट ना आए, ये बहुत लोगों के साथ होता है कि जब वो फाइनल ऑडिशन का एक टाइम आता था, कि इतने सारे ऑडिशंस के बाद, रिजेक्शंस के बाद, एक जो फाइनल टाइम तक, जब कई लोगों के साथ ही होता है कि वो पहुंचते हैं वहां तक, और वहां ऐसा होता है यार अभी मन ही नहीं कर रहा है, मैं इतना यहाँ तक वो कर लिया हूँ कि वो फाइनल चीज में अपना पूरा 100% 200% नहीं दे पाते। सो आई थिंक वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। वो मैंने हमेशा उस चीज को हमेशा ये किया कि ये मेरा पहला और आखिरी चांस है, तो हर चांस को उसी तरह से देखता रहा। आज भी मैं अपनी हर फिल्म को ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म की तरह ही सोचता हूँ और काम करता हूँ उस पर। What a takeaway. Yes, you are as good as the opportunity that you get, and who knows, एक opportunity जिंदगी बदल लाइफ देती है। चेंजिंग होता है, लाइफ चेंजिंग हो सकता है। मेरा ऑडिशन जो प्यार का पंचनामा का ऑडिशन था, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था उस टाइम। मेरे
तो ये ऑडिशन हो रहा था अंधेरी में, मैं रहता था नवी मुंबई में खारघर में, विच इज अगेन 2 hours 2.5 hours अवे। तो और मेरा उस दिन एग्जाम था कॉलेज में, और या तो मैं एग्जाम दे सकता था या फिर एक ऑडिशन एक फिल्म का, जो मुझे गूगल में कहीं पे फेसबुक पे कहीं पे मिला है, जिसमें बस बोला गया था कि 6 या 5 लोग नए लोग चाहिए, न्यू कमर्स को मौका मिल रहा है, उनके लिए ऑडिशंस है, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, आप ये ऑडिशन के लिए आ जाइए। तब फिल्म का नाम नहीं पता था, तब किसी का नाम उससे अटैच नहीं था, सिर्फ एक कुछ नए लोग एक फिल्म बनाना चाह रहे थे, उनके लिए ऑडिशन हो रहा था। और वो एक्चुअली में शायद से गूगल पे देखकर आप चले गए? हाँ, मैं फेसबुक पे था ये, तो फेसबुक पे मैंने एक किसी के वॉल पोस्ट पे देखा था, और ग्रुप कम्युनिटीज होती थी तो उसमें डाला हुआ था, एंड कई बार वो फेक भी होते थे। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन था कि शायद या तो मैं यहाँ जाऊं या तो मैं अपना एग्जाम दूं कॉलेज का। अभी मैं ये ऐसा एडवोकेट नहीं करूंगा कि कोई अपने कॉलेज के एग्जाम्स छोड़िए, पर वो उस दिन ऐसा संजोग था, ऐसा वो था कोइंसिडेंस कि एग्जाम भी मेरा उसी दिन था। एंड आई डोंट नो समथिंग इन, मुझे ऐसा गट फीलिंग आया कि नहीं, मैं ये नहीं छोड़ना चाहता हूँ ये अपॉर्चुनिटी। एंड आई हैड नो आइडिया कि वो फिल्म मेरी पहली फिल्म बन जाएगी, या वो फिल्म दैट विल कम एंड टर्न इनटू प्यार का पंचनामा, या उसका वो मोनोलॉग बनेगा। मोनोलॉग वेल, ऑडियंस डिमांड, पॉपुलर डिमांड, वो मोनोलॉग बिकेम योर आइडेंटिटी, यू गॉट रिमेम्बर्ड बाय दैट। एक बार हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जो वो मुंह खोलती है, मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी, 6 महीने में आई हैव हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अरे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काहे की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब होता है एंड योर ओन हैप्पीनेस, अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। फैंटास्टिक। एंड यू रिमेम्बर दिस? या ये तो मतलब मैंने अभी आधा पौना पेज बोला है, ये 6 पेज का था, जो 6 मिनट 5.5 मिनट का डायलॉग था। सेकंड पार्ट में ये 12 मिनट का डायलॉग किया था हमने शूट, जो जब लगाया गया फिल्म में, आई थिंक वो तब 7.5 मिनट का होगा। सो इट वाज एक्चुअली अ How रिकॉर्ड। many takes did it take? One take. One take? Yeah. The first. New actor, one take, Yes. and unforgettable moment that everybody remembers till date. Oh my God, you're a sensation. Irony is that Facebook पे जहाँ पे मुझे ऑडिशन का पता चला था, मैं उस एग्जाम में फेल हो गया था ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं इस ऑडिशन पे गया था। तो जो फेसबुक पे मुझे ये ऑडिशन का पता चला, उसी में ये डायलॉग, ये मोनोलॉग, जो मेरा ऑडिशन टेस्ट था इन अ वे, क्योंकि 4 महीने तक हमारा ऑडिशन चला था, तो चौथे महीने पे उन्होंने मुझे ये मोनोलॉग दिया था फाइनल ऑडिशन के लिए। एंड देन आई डिलीवर दैट ऑडिशन एंड मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। फेसबुक वॉज अ वन ऐप जिसमें वो वायरल हुआ था, वो मोनोलॉग उस टाइम, 1 साल बाद, जब 2 साल बाद फिल्म आई थी। तो मतलब कोइंसिडेंटली उधर से ही मुझे फिल्म का मौका मिला था, और उधर ही वो वायरल हुआ था। हर किसी के वॉल पोस्ट में वो वाला डायलॉग या मोनोलॉग हर जगह था। So, do you call it destiny or do you call it Kartik Aaryan का एक सिंगल फोकस्ड, वो एक शाहरुख खान का डायलॉग भी है ना, कि अगर आप कुछ मांगे तो पूरी शिद्दत से मांगे तो पूरी कायनात आपको। हाँ, तो आई थिंक मुझे लगता है मैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करता हूँ, और वो मेरे लिए बहुत वर्क की है। मैं हमेशा ये बहुत बार ये कॉन्वर्जेशन होता है मेरे साथ, क्योंकि कई बार मुझे ये बोला भी जाता है, यू हैव डिफाइड ऑल द ऑड्स, अगेंस्ट ऑल ऑड्स यू हैव। तो मुझे हमेशा ये लगा है कि शायद मैंने वो चीज़ों को बहुत मैनिफेस्टेशन किया है, एंड कि मुझे ये इस प्रोफेशन में जाना है, मुझे इस प्रोफेशन में अच्छी मूवीज करनी है, मुझे अच्छे रोल्स करने हैं, मुझे व्हाटएवर, मुझे ब्रांड्स एंडोर्स करने हैं, मुझे मेरी लाइफ में यहाँ पे पहुँचना है। ये सारी चीज़ें मैंने एक्चुअली अपने दिमाग में सोची हैं, ड्रीम किया है, एंड एक्चुअली मैं उनको अब जिया भी है और जी रहा हूँ। आई थिंक वो, क्योंकि वो स्टार्ट ही अगर आपसे हो
तो आई थिंक इट्स लिमिटलेस. कई लोगों का स्टार्ट ही ये लगता है कि वो डाउट आ जाता है कि नहीं यार ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये मैं कहाँ वहां पे पहुंच पाऊँ. मुझे लगता है कि अगर वो इंसान वहां पे पहुंच सकता है तो आप भी पहुंच सकते हो. तो ऐसा कुछ मतलब वो भी तो इंसान है जो वो चीज कर रहा है जिसको आप करना चाहते हो. सो आई थिंक वो बिलीफ अगर आप में है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो. एंड आई थिंक दैट इज माई होल मोटो इन लाइफ. Fantastic. Let me also talk about Chandu Champion. You got a lot of accolades for that role, that film. कैसा लगा जब जावेद अख्तर साहब, शबाना आजमी जी, कैटरीना कैफ, and then Mary Kom, likes of that. You get compliments from all of these people. What was that role like? It was unreal. Chandu Champion is, I think, a gem in my filmography. मेरे लिए हमेशा वो एक फिल्म होती है कि एक्टर की लाइफ में. आई थिंक चंदू चैंपियन इज दैट रेयर फिल्म जो आई थिंक मेरे लिए हमेशा वो एक्सपीरियंस यादगार रहेगा. और उसका जिस तरीके से प्यार जितना मुझे मिला उस फिल्म से, जितना प्यार नॉट जस्ट फ्रॉम द ऑडियंस एंड फैंस बट ऑल्सो द इंडस्ट्री, ऑल्सो द स्पोर्ट्स एथलीट्स. आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म जो पैरालंपियंस पे बनी थी. मैंने श्री मुरलीकांत पेटकर जी का रोल उसमें निभाया था. और उनकी कहानी 50 साल से मतलब मुझे भी नहीं पता थी कि यहाँ पे बहुत लोगों को हमें नहीं पता थी कि उनके अचीवमेंट्स क्या हैं. एंड जिस तरीके से इस साल पिछले साल हमारे पैरालंपियंस ने भी परफॉर्म किया पैरालंपिक्स में, वो भी बहुत अनरियल था. तो वो इस साल तो आई थिंक वो सब चीजें पता नहीं क्या हो रहा था कि एक साथ अलाइन हो रही थी. एंड आई मेट सो मेनी यू नो पैरा एथलीट्स एंड उनके साथ भी कॉन्वर्जेशन हुआ. इनफैक्ट जिस तरीके से बाकी एथलीट्स हमारे इंडिया के जिन्होंने ये फिल्में देखी और इस बारे में बात की, आई थिंक I've gotten so much love for this film. It's unreal. And कितना प्रिपेयर करना पड़ा था इस फिल्म के लिए? अराउंड 1.5 डेढ़ साल हम लोग सिर्फ इसकी प्रेप कर रहे थे. बिकॉज इसमें एक बॉडी टाइप था, एक स्किल सेट्स थे बहुत सारे. मैंने कभी बॉक्सिंग नहीं की थी, कभी मैंने रेसलिंग नहीं की थी, स्विमिंग मुझे नहीं आती थी ढंग से. तो मुझे यहाँ पे, और कबीर सर का ये बहुत एक उस तरीके के डायरेक्टर हैं जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड चीजों में यू नो मानते हैं. तो वो मेरे साथ जो मेरे ओपोनेंट्स थे, तो अगर मैं स्विमिंग कर रहा हूँ तो एक्चुअली में मेरे साथ वाले सारे स्विमर्स प्रोफेशनल स्विमर्स थे. बॉक्सर्स, एक बॉक्सर वर्ल्ड चैंपियनशिप बाउट खेल के मेरे साथ फाइट करने आ रहा था अगले हफ्ते. सो ऐसी चीजें थी, ऐसी सिचुएशन थी. मैं जिस सो लंदन में हम लोग शूट कर रहे थे एक स्विमिंग पूल पे जो ओलंपिक्स में यूज होता है. वहां पर मेरा एक फॉर एग्जांपल मैं 5th लेन पे था अगर, तो 4th लेन पे जो थे वो आई थिंक डेनमार्क से थे, कहीं से थे. तो वो एथलीट स्विमर मुझे वहां पे बोलते हैं कि आई वन द गोल्ड मेडल इन योर लेन इन रियलिटी. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ सराउंडेड हूँ एथलीट से, रियल ओलंपियंस से, जिनके साथ मैं एक्चुअली कम्पीट कर रहा था. तो मुझे वो एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था इन सबके साथ ऐसी चीजें करना. एंड थ्रू अ फिल्म एंड थ्रू अ जर्नी जो इनकी रही. तो डाइट पे था, स्किल सेट सीख रहा था मैं. 1.5 साल इन्वेस्ट करते हैं एक्टर्स टू प्रेप फॉर अ फिल्म? आई थिंक सो करते हैं. आई थिंक सो काफी ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं जिन्होंने ऐसे इन्वेस्ट किया. काफी कम भी रहे हैं एग्जाम्पल्स, इतने ज्यादा नहीं है. लेकिन मुझे जब आपको जब इस तरीके का रोल मिल रहा है, मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक खुद से भी एक ये था कि मैं करना चाहता था ऐसा रोल. How much weight did you lose for this? आई लॉस्ट अराउंड 18 kgs फॉर दैट रोल. हाई कितना जिसमें मेरे से बहुत था. मैं ये तो अब मैं पोस्ट चंदू चैंपियन के बाद हूँ, लेकिन Well, I'm the last person who should ask anybody. But आई थिंक मैंने एक फिल्म की थी फ्रेडी उसके पहले, और वो फ्रेडी में मुझे वेट गेन करना था. तो तब मैंने ऑलमोस्ट 20 किलो वजन बढ़ाया था उस फिल्म में. तो मैं ऑलरेडी एंड कोइंसिडेंस ऐसा था कि उसी के बाद मुझे चंदू चैंपियन की प्रेप में जाना था. तो so I had to lose that weight which was fat weight and turn it into muscular weight. तो वो सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लमैटिक वो चीज थी. तो मैंने वो ही चीज किया और 18 किलो वेट लूज किया. बाकी जो भी मतलब मस्कुलैरिटी गेन की, बॉक्सिंग सीखा, स्विमिंग सीखा, और जिनमें स्विमिंग विदाउट द यूज ऑफ लेग्स सीखा फिर, बिकॉज उनके लेग्स पैरालाइज थे तो वो हाथ से स्विमिंग होती थी. सो आई थिंक वो सारी चीजें difficult scenes to do.
वेरी डिफिकल्ट without using your legs if you have to swim. मुझे पैर के साथ स्विमिंग नहीं आती थी, मुझे पैरों के बिना स्विमिंग सीखना था। तो आई थिंक वहां तक जा रहे थे हम लोग, तो उसमें वो बहुत वक्त लगा, इसीलिए वो 1.5 साल की ट्रेनिंग बहुत जरूरी थी, क्योंकि कैमराज वो सिर्फ ऊपर दाएं बाएं नहीं, वो अंडर वाटर भी लगा रहे थे, तो उनको हर एंगल से ये सब शूट करना था। एंड Did you use any body doubles? नहीं, इसमें बहुत रेयरली बॉडी डबल, मतलब ना के बराबर यूजेज था, बिकॉज वो फेस और वो जरूरी थे, एक्सप्रेशंस एंड सब चीजें एंड बॉडी लैंग्वेज वो मैच करना नामुमकिन है। बिकॉज टेक्निकली ऐसा भी नहीं था कि मैं सारे स्पोर्ट्स ऐसे कर रहा था जिनमें कपड़े नहीं पहनते, मैं स्विमिंग कर रहा था, दंगल कर रहा था, बॉक्सिंग कर रहा था, तो उसमें किसी को भी मैच करना बड़ा मुश्किल खेल है। So एक ड्रेस डिजाइनर का खर्चा तो कम हुआ था, वो प्रोड्यूसर खर्चा बहुत कम हो गया, लेकिन बाकी बहुत खर्चे थे इन सारी चीजों को एक साथ लाना, एथलीट्स को लाना, इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स में शूट करना, ऐसी लोकेशंस पे शूट करना, इट वाज जस्ट टू मच। मतलब अखाड़े में हम लोग शूट करते थे बॉक्सिंग के, और इतनी धूप में हम लोग सब लोग दंगल करते थे। वो रेत ऐसा होता था कि एकदम गर्म रेत होती थी, सुबह दोपहर के 12 बजे टॉप सनलाइट पे एक हिल पे। कबीर सर ऐसी लोकेशंस भी ऐसी ढूंढते थे कि जहाँ पे कोई नहीं गया हो, तो हम लोग ऐसे पहाड़ पे कहीं पे शूट करते थे। तो ये दंगल के टाइम पे ऐसा था कि इतनी गर्मी में वो चित पड़ रहे हैं, वो गिरा रहे हैं आपको, और वो एकदम पीठ पे लगती थी। वहीं जब स्विमिंग कर रहे थे तो पानी इतना ठंडा होता था कई बार कि वो ठंडे पानी में जाना ऐसा लगता था टॉर्चर हो रहा है। सो आई थिंक मैंने सारे टेम्परेचर, सारे तरीके के क्लाइमेट्स देख लिए इस पूरी पिक्चर में। उस फिल्म के बाद किसी ने कार नहीं प्रेजेंट की? करनी चाहिए थी। वेट कर रहा हूँ वेट कर रहे हो because after so how long did you diet, how much did you work out, कितने घंटे दिन में वर्कआउट करना पड़ता था? फॉर द एंटायर टाइम वो पूरा का पूरा जो 1.5 साल का पूरा एक सिस्टम था, जिसमें मैं डाइट ऐसे फॉलो कर रहा था लाइक अ मशीन, लाइक अ रोबोट। बिकॉज अगर मैं रात को, जैसा मैं बोल रहा था कि रात को मैं एक सूप पी रहा था, टमेटो सूप, तो वही सूप मैं 1.5 साल तक बस वही पीता रहा। कोई चेंज नहीं उस रेजिम में, कोई चेंज नहीं उस डाइट पे। 1.5 साल you lived on tomato soup at night? नॉट जस्ट टमेटो सूप, बट अगर मैं रात को डिनर के टाइम सिर्फ वही खा रहा हूँ तो मैं शुगर से पूरी तरह से ऑफ हो चुका था। आई वॉज ऑफ शुगर। किसी भी तरीके का खाने में मीठा नहीं हो सकता था। एंड ऑफ कोर्स कार्ब्स एकदम मिनिमम थे, प्रोटीन ज्यादा थे। इट वाज जस्ट अ डाइट विच फेल्ट लाइक कि मैं कुछ ऑलमोस्ट खा ही नहीं रहा हूँ, एंड फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 2 years। तो वो तो फॉलो करना था, एंड साथ साथ उसके बॉक्सिंग सीखना था। रोज सुबह बॉक्सिंग होती थी, दोपहर को जिम ट्रेनिंग होती थी, शाम को मेरी स्विमिंग होती थी। एंड सो दिस वाज जस्ट अ रेजिम। 7 दिन इनफैक्ट मेरा ये चलता था रेजिम। कभी किसी दिन अगर बॉक्सिंग में मेरे शोल्डर इंजरी भी हुए, स्विमिंग के टाइम, स्विमिंग में एक्चुअली एक चीज बहुत अच्छी होती है कि अगर इंजरी हुई है तो रिहैब भी स्विमिंग से होता था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो हेल्प भी करती थी स्विमिंग। सो मैंने ऐसे एक शोल्डर, मेरा राइट शोल्डर अगर थोड़ा सा इंजर हो गया तो मैं स्विमिंग भी कर रहा हूँ उस राइट शोल्डर इंजर्ड शोल्डर के साथ। सो आई थिंक ये 1.5-2 साल मैं एथलीट की तरह ही जी रहा था। सन्यासी की लाइफ थी भाई। पूरी सन्यासी की लाइफ थी पूरी। Very difficult, but after that sweet success. अब सक्सेस के बाद कार्तिक आर्यन का with so much success, with the fact that you are the magic boy, आप जिस प्रोजेक्ट को छूते हैं, जिस फिल्म को छूते हैं, वो बॉक्स ऑफिस में तूफान ले आती है। छोटा जी, मुझे अभी भी डर लगता है ये जब बात सुनता हूँ। जी जी। तो आपकी मम्मी को मैंने बहुत इंटरव्यूज में देखा है, वो आपकी नजर वगैरह उतारती हैं? नहीं, वो इंटरव्यूज नहीं आती, वो सिर्फ वो कपिल शर्मा उनके फैन है, तो उनके शो में कई बार दिखी है, ऑडियंस में दिखी है। और एक बार उन्हें ऑफ कोर्स बुलाया भी था शो में। तो उसके बाद एक्चुअली उस शो में तो वो पहले जब बैक स्टेज में होते हैं तो मुझे डर लग रहा था कि ये चुप ही रहेंगे बेचारे, ये नर्वस हो रखी हैं। तो मैं उनको प्रेप कर रहा था कि आप नर्वस मत हो, आपको सिर्फ हंसना है, शो में जाके आपको कुछ करना नहीं है, आप बस जाओ और हंसो, वो करेंगे जो भी आप बातें करेंगे। और मैं ऐसे प्रेप कर रहा था, लेकिन जब उधर स्टेज पे गए तो वो इतना बोली कि मुझे डर लग रहा था कि ज्यादा बोलती जा रही है, पता नहीं कितनी पोल खोल देंगी। तो उनको चुप कराना पड़ रहा था मुझे बार बार। तो पोल आपने वैसे खुलने नहीं दी थी। अब कार्तिक आर्यन, रैपिड फायर, रिलेशनशिप स्टेटस? सिंगल।
Ready to mingle? हंस रहे हो यार लोग जानना चाहते हैं. How can such an eligible bachelor be left alone? मेरे ना मैम बहुत ऐसे रिलेशनशिप्स की न्यूज बहुत आई है बीच में, तो मैं ना अब वो घबराहट होती है जब भी ऐसी न्यूज आती है, तो मैं ना एकदम थोड़ा सा बहुत ऐसा हो गया हूँ कि कहीं बचता रहता हूँ कि ये कुछ भी ऐसी न्यूज ना है. मैं क्यों? हाँ, What's the big deal? बिग डील नहीं है, मतलब कई बार But you're a young man. हाँ Having a girlfriend is the most normal thing. हाँ, लेकिन आई हैव टू मीट द राइट गर्ल नाउ इन लाइफ. तो रॉन्ग अब तक जो मिली है वो रॉन्ग थी. आपने कहा नाउ, अब टाइम्स नाउ पे नाउ बोलोगे तो सवाल तो उठेगा ही. मुझे लगता है कि मैं हाँ नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई भी रॉन्ग गर्ल. आई थिंक राइट गर्ल एट द राइट टाइम. So your relationships so far haven't worked out, so now you are giving it some time. Look, what are you looking for? Giving myself some time. I think I need some time alone also in life, because I've been बहुत नहीं हो गया alone. बहुत काफी टाइम से हो टोमेटो गया. सूप पीते पीते 2 साल आपने निकाल दिए. फिर अब भूल भुलैया में भूल भुलैया करते रहे, और आपका जो कैरेक्टर है मंजुलिकाओं के अराउंड बहुत घुमा हूं मैं. हाँ. लेकिन बाबा जी भी तो बहुत फेमस हो गए हैं. अब बाबा जी आप अपना फ्यूचर खुद ही बता दो, राइट लड़की कहाँ है? मैं होप करता हूँ कि रेजोल्यूशन लेता हूँ कि 2025 में मुझे कोई मैं रिलेशनशिप में चला जाऊँ. चला जाऊंगा. हाँ. समथिंग्स नहीं, ऐसा कुछ ब्रू नहीं हो रहा है. ऐसे नहीं हो सकता. तो 2025 में रिजल्ट कैसे आएगा अगर अभी 20 दिन में तो 25 है. हाँ, अच्छा कैसे तो इतनी कुछ- जल्दी कैसे आ जाए? हाँ, तो कुछ चल रहा होगा ना कुछ. कुछ भी नहीं, मैं होप कर रहा हूँ ऐसा मैजिक हो जाए रू बाबा की लाइफ में. कुछ कैरी फॉरवर्ड, कोई रीइग्निशन ऑफ द ओल्ड? नहीं नहीं. नहीं, मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं है, और ऐसा नहीं है अभी तक कुछ नहीं है. आपकी मम्मी तो बहू ढूंढ रही है कब से. ऐसा उनने नहीं बिल्कुल नहीं ढूंढे. वो खुश है, मैं सिंगल हूँ, बहुत खुश है एक्चुअली. क्यों? आई मीन क्यों, मतलब हमारी इंडियन माओ का, और दैट इज द वे दे शो इन सिनेमा ऑल्सो, हाँ. कि बेटा सेटल हो जाए तो अच्छा है, तो प्रेशर नहीं है. बट बेटा सेटल्ड ही है ना, अच्छा खासा कमा रहा है बेटा, अच्छी खासी चीजें कर रहा है लाइफ में, एकदम ब्लिंकर्स पे. बट ऑनेस्टली मम्मी हाँ. कहती नहीं है कि बेटा आप ढूंढ ले कोई? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं कहती. आगे जाके कहें तो अलग बात है, लेकिन अभी आई थिंक शी इज हैप्पी विद द वे माई जितना फोकस से मैं अपने करियर पे हूँ. आई थिंक डरते हो मम्मी से? हाँ, बहुत डरता हूँ. हाँ, पापा से? पापा से ठीक इतना नहीं डरता, मम्मी से डरता हूँ. भाई पापा थोड़े ऐसे इतना ज्यादा बोलते नहीं है मुझे, या घर पे मम्मी से सब डरते हैं. पापा भी मम्मी से डरते हैं. घर घर की कहानी. हाँ, यही वो एक बार बोलती है तो सब चुप रहते हैं. बट आर यू अ गुड बॉय? लिटरली यू आर शोइंग के आप बड़े गुड बॉय हो, मम्मी की हर बात मानते हो. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं टोमेटो सूप पीता हूँ, गर्लफ्रेंड मेरी है नहीं, मेरे पास लंबी लंबी गाड़ियां. ये गाड़ियां किस काम की अगर कोई किसी को घुमाया नहीं उसमें? मैं बगल की सीट खाली अच्छी थोड़ी लगती है. नहीं, मैं अभी टमेटो सूप पीने से गुड बॉय थोड़ी बन जाते हैं. वो तो वो ठीक है, वो तो एक डाइट है. थोड़ा सा फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सा कन्फेस करो बेटा. नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कन्फेस करूँ क्या. मैं जो बातें बताई वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो और भी कर रहा हूँ तो मैं वो बताना नहीं चाह रहा हूँ ना. नहीं, अब ये बात फ्रैंकली स्पीकिंग हाँ. सच बोलना चाहिए. आपकी इतनी क्वालिटीज हैं उसमें, और आप सन्यासी ऑलमोस्ट हो, तो जी. झूठ तो बोलना नहीं चाहिए. Correct. सच ही बोलना चाहिए. Correct. तो दिल पे हाथ रख के बोलो जी. कि आई दिल इस साइड है. हाँ. दिल गलत साइड में मत ले जाओ बॉस. करेक्ट जी. बहन डॉक्टर है ना, हाँ, correct. बहुत इसीलिए- मारेगी. इसीलिए यहाँ आ गया. बहुत मारेगी अगर भाई दिल का साइड ही नहीं जानता कौन सा है. मेरे पास 2 दिल है. 2 दिल हैं. अच्छा, तो जो पब्लिक को दिखाते हो वो खाली वाला दिखाते हो, जहां पर कोई है वो दूसरी तरफ रखा हुआ है. नहीं, ऐसा नहीं. मुझे जेन्युइनली मुझे पहले बोला गया था कि मेरी हार्ट रेट थोड़ी ज्यादा जाती है, तो इसका मतलब है हिंदी में कि दिल ज्यादा धड़कता है मेरा.
तो ये मुझे actually- धड़कते हुए दिल में भी अगर अब तक लड़की नहीं है और आपको देख के लड़कियों का हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, व्हाट्स हैपनिंग? कहीं ना कहीं पता कुछ नहीं क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक हम ज्यादा लोगों को मिल ही नहीं पाते इस इंडस्ट्री में, ऐसा यही है, यही रीजन है। ज्यादा से ज्यादा आप जिनके साथ काम कर रहे होते हो आप उन्हीं को मिलते हो, तो आपके बहुत एक सेट पैटर्न होता है जिसमें आप लोगों को इतना ज्यादा मिल नहीं पाते हो। और मैं इतना ज्यादा पार्टीज करता नहीं हूँ, तो मैं ज्यादा इधर उधर बाहर जाता नहीं हूँ, तो मेरी आदतें थोड़ी बहुत अभी गुड बॉय वाली बातें क्या बोलूं मैं बाहर ज्यादा जाता नहीं हूँ, तो मेरे स्मॉल टाउन, आप ग्वालियर से आते मैं हैं, ग्वालियर से हूँ। हाँ। अभी भी मुंबई की पूरी छाप नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मुझे जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुंबई ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है, और ऐसा कोई छाप वाली बात नहीं, मुझे मुंबई की भी बहुत क्वालिटीज अच्छी लगती है, लेकिन मेरे अंदर जो ग्वालियर का एक ग्वालियर बॉय है वो मेरे अंदर अभी तक जिंदा है, एंड आई थिंक वो हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। बॉलीवुड लोग कहते हैं कि आउटसाइडर्स को बहुत जल्दी अपनाता नहीं है। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? आई थिंक मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं यहाँ पे जो भी मैंने अभी तक पाया है उसमें बस ये चीज जरूर रही है कि मैंने ये जरूर देखा है कि ये शायद से पता नहीं बॉलीवुड है या कोई और भी इंडस्ट्री हो, ये देर इज दिस सेंस जहाँ पे जब आप लोगों को ऑफकोर्स जानते हैं तो आपकी कुछ चीजें आसान हो सकती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका टैलेंट और आपकी सक्सेस ही विल स्पीक वॉल्यूम्स फॉर यू। ऑफकोर्स इवन प्ले फील्ड नहीं है, ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा इस बात पे कि ये चीज, और ना मेरे को इस बात की कोई सिंपैथी भी चाहिए लाइफ में। मैं बहुत बहुत कंप्लीट हूँ एंड अपने आप में बहुत खुश हूँ, मुझे कोई इस चीज का टैग या कोई चीज नहीं चाहिए कि अरे यार ये बेचारा ये नहीं। मैं बस एक सवाल का जवाब यही देना चाहता हूँ कि वो इवन प्लेइंग फील्ड नहीं होती है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस तरीके से वो हमेशा सामने आती है बात कि आउटसाइडर्स को इतना मौके नहीं मिल पाते। वो इसलिए भी नहीं मिल पाते क्योंकि हमारे पास इतना एक्सेस होता नहीं है। यू नो मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्टर है या कोई कोरियोग्राफर है या कोई Who can open doors for एक्शन you? डायरेक्टर है, नहीं, हाँ, तो कोई भी नहीं है। सो हु कैन ओपन डोर्स फॉर मी? सो मेरे डोर्स मैं खुद ही खोल रहा हूँ, एंड आई वांट टू बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, एंड आई थिंक जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने वो ग्रैब की, और फिर उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी, तीसरी अपॉर्चुनिटी, शायद से मुझे उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हो जो दूसरों को मिल पाई हो, लेकिन मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी उन चीजों में, एंड मुझे उस बात का कोई गिला शिकवा नहीं है। सो आई एम रियली हैप्पी विद विद माय सक्सेस क्या एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है? विद सक्सेस ऑफ कोर्स, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं, मुझे लगता है विद सक्सेस आपको ज्यादा ऑथेंटिक काम मिलने लगता है, जो शायद से आप पहले क्रेव कर रहे हो, वो आपको मिलता नहीं था पहले, वो आपको काम मिलने लगता है। एक्सेप्टेबिलिटी, आई मीन सी, मैं यहाँ पे यही बोलता हूँ कि आई एम नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स, एंड मुझे उस बात से कोई वो नहीं है कि एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं You हो have रहा है। no friends in the film industry? I can call them colleagues, I can call them कि work colleagues जिनके साथ मैं काम करता हूँ, बट फ्रेंडशिप मेरे हिसाब से जो कॉलेज में एक फ्रेंडशिप होती है, जो आपके स्कूल के फ्रेंड्स है, वो आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। आई हैव मेट वंडरफुल पीपल इन दिस इंडस्ट्री, बट इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, Relationship. हाँ, इट्स अ डिफरेंट रिलेशनशिप। So, what does Kartik Aaryan's normal day look like? काम पे जाते हैं, then how do you relax? Everybody comes back, chills, either with friends or something. आप क्या करते हैं? मेरा एक्चुअली मैं इतना चिल नहीं कर रहा होता हूँ मेरी सारा टाइम काम ही करते हैं। सारा टाइम मेरा वो कंप्यूटर की तरह काम ही चलता रहता है दिमाग में How पूरा टाइम। boring, Kartik Aaryan. Yes, it is kind of boring, but maybe I'm trying to entertain people by me being boring. So I think that's the whole point. So मैं लोगों को entertain कर रहा होता हूँ। Does anybody in the audience believe कि ये इतना boring आदमी होगा? कोई believe नहीं कर रहा। सच बोलिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बोरिंग हूँ, मैं अपने लिए बोरिंग हूँ, मैं दूसरों के लिए बोरिंग नहीं हूँ। नहीं, लोग क्या ये सच बोल रहा है कि कुछ है जो ये नहीं बता रहा? देखिए, कोई नहीं मान रहा, कह रहे हैं कि भाई ये आपने एक मुखौटा पहना हुआ है, आप यू वांट अस टू बिलीव दिस, तो बट आप दैट्स सोच नॉट। रहे होगे कि मैं घर आऊंगा, उसके बाद मैं तैयार होके कोई पार्टी में जाऊंगा, चिल करूंगा। तो लैम्बोर्गिनी लेके क्या ड्राइंग रूम का चक्कर लगाते हो?
नहीं नहीं, लेम्बोर्गिनी लेके मैं ड्राइव पे चला जाता हूँ कभी भी, ऐसा नहीं है। अकेले? जब हाँ अकेले? हाँ म्यूजिक लगाता हूँ, अकेले ड्राइव पे निकलता हूँ। अब मेरी कल की पैदाइश है, मैंने मान लिया आपकी सारी बात, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो मान रहे हैं। मैं अपने राइट वाले दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ। ये झूठी कस्में जो है ना, ये आप पे बॉलीवुड का रंग चढ़ गया है, ये ग्वालियर वाली बात नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं जेन्युइनली, मेरे को मुझे बोलते हैं लोग, मुझे एक्चुअली में बोलते हैं मेरे आसपास सब। तो कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, अकेले एक लैम्बोर्गिनी में एक आदमी जा रहा है, वो कार्तिक आर्यन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये हर दिन की बात नहीं बता रहा हूँ मैं। यूजुअली ऐसा होता है कि आई जस्ट, मुझे अकेला रहना ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगता है। मैं एक्चुअली बहुत फैमिली के साथ अपना बहुत ज्यादा घूमता हूँ, और अगर हाँ फॉर एग्जांपल आप रिलेशनशिप की जैसे बात कर रहे थे, अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ तो मैं अपने उनके साथ घूम रहा हूँ कहीं पे। लेकिन हाँ, अगर तो मैं ये बता दो ना कौन है, ये तो बता दो। अगर होता तो ये क्या बात हुई, ये मेक बिलीव, ये तो ड्रीम सीक्वेंस हो गया ये किसी ड्रीम हिंदी फिल्म। सीक्वेंस है। नहीं, ड्रीम सीक्वेंस। हम दोनों वो ड्रीम देख रहे हैं। यू हैव टॉक्ड अबाउट ड्रीम्स बिकमिंग रियलिटी। अब ये बताओ, इस ड्रीम सीक्वेंस में कौन लैम्बोर्गिनी के साथ वाली सीट पे बैठी है? एक लड़की ही होगी। हाँ, आई होप। नहीं, आई ऑल्सो होप। बहुत लड़कियों का दिल टूट जाएगा नहीं तो। 100% बस उसके आगे मुझे नहीं दिख रहा है, ड्रीम दिख नहीं रहा है अभी। वो जैसी दिखेगा, आई थिंक जल्दी दिखेगा। जल्दी दिखेगा? हाँ, आई होप सो। So something's in the pipeline. There's nothing in the pipeline right now, but I hope there will be something in the pipeline. ये होप ऐसे नहीं आती, ये होप का कोई फाउंडेशन होता है। आप इतना शर्मा क्यों रहे? मैं शर्मा नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ काश हम ऐसे कोई फिल्म की बात कर रहे होते। ये तो फिल्मों की बात तो की। There is more to life than just films. Correct. That's true. But कार्तिक आर्यन बताना चाह रहा है कि बस मैं फिल्म्स करता हूँ। Are you saying that your private life is private? It's a cliched term, and I think it went out I of fashion decades ago. I genuinely try to make it private. मेरी एक्चुअली पर्सनल लाइफ बहुत पब्लिक हो चुकी थी, और मुझे रीजंस नहीं समझ आते थे। लेकिन अब काफी टाइम से एटलीस्ट मेरी जेन्युइनली मेरी लाइफ एक प्राइवेसी में मैं अपनी लाइफ रखता हूँ। लेकिन हाँ, मैं स्पोर्ट्स बहुत अभी ये बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ। मैं फुटबॉल बहुत पसंद करता हूँ, क्रिकेट बहुत पसंद करता हूँ। तो आई थिंक आई मेक दोज प्लान्स विथ सम कलीग्स ऑफ माइन, या जो जिनको मैं जानता हूँ, और कुछ मेरे दोस्त हैं, तो उनके साथ मैं ये सब चीजें बहुत करता रहता हूँ। कि स्पोर्ट्स मूवीज देखने जाता हूँ काफी। So I'm asking you a straight question, and be absolutely truthful. हाँ. You don't want to talk about the person in your life. That's entirely your right. But हाँ. at least you should say कि yes, I have somebody in my life, but I don't want to talk about her. We respect that. But at least सच तो बोलो. Yes, I don't have anyone in my life. सच बोल रहा हूँ। यहाँ पर कोई फिल्म नहीं शूट हो रही। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आई होप मेरी लाइफ में कोई होता तो बहुत मजा आता है ये बात बोलने में। जेन्युइनली बोलता, मैं बोलता कि कैसे अच्छा, what are लैम्बोर्गिनी you तो वो looking चला for? रही थी, What मैं are तो you बाजू में looking बैठा for? था। हाँ, What are you looking for? What am I looking for? तो एकदम ही मैट्रिमोनियल हो गया है मेरे लिए। हाँ, ऐसे ऐसे ये सब चीजें नहीं, बट आई थिंक राइट टाइम पे राइट इंसान मिल जाए मेरे को, बस दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। Okay. एंड जिसके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो, जिसके साथ जिनको मैं एंटरटेन कर पाऊं, हंसा पाऊं। That's a good one. That's a good one. And what's your next project? What are you looking forward to in terms of films? आई एम वर्किंग विथ अनुराग बासु सर, दादा के साथ काम कर रहा हूँ, और बस वही फिल्म अभी नेक्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके अलावा कुछ डिसाइडेड नहीं है। आई थिंक इट्स बिन अ क्रेजी ईयर फॉर मी। तो मुझे टाइम नहीं मिला है कि इन दोनों फिल्मों से बाहर कुछ सोच पाऊँ। तो अब जाके मैं थोड़ा सा
रिलैक्स भी कर रहा हूँ, थोड़ा छुट्टी भी चल रही है फाइनली। जो हम बात कर रहे थे, तो ये इस महीने मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड हूँ। ये आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हॉलीडे टाइम आया है, सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग दैट। So what is your ideal place for a holiday? India में you'll get mobbed, so abroad? नहीं, इंडिया में भी मुझे बहुत, मैं इनफैक्ट इंडिया में बहुत ट्रैवल किया अभी। हाँ, वो तो 20 सिटीज का टूर आपने किया, भूल भुलैया। नहीं, वो मैं हॉलीडे नहीं, वो मैं काम कर रहा था। पर मैं अभी जयपुर में गया था, वहां पे मैं बहुत, आई थिंक आई रियली हैड फन। गोवा गया था ऑफ कोर्स, तो वहां पे भी, एंड सो मैं इंडिया में अभी 2-3 जगह पे ऐसे गया था। बाहर अगर मुझे जाना होगा तो आई डोंट नो, मैं पेरिस जाना चाहूंगा। Okay. जी। So that's next on your agenda. जी। And you know, what kind of music do you listen to when you're driving your Range Rover, Lamborghini, Mini Cooper? भागते हुए भी पसंद है म्यूजिक, कार्डियो What करते हुए। kind of music? एनीथिंग, मुझे हिप हॉप पसंद है, मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है, मुझे मेरा ऐसा कोई जॉनर नहीं है गानों में। Now you have said this. मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है, मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, मेरा दिल राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, फिर आप चाह रहे हो कि कोई सवाल भी ना पूछे, रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हो। अरे क्या, तो सब रोमांटिक सॉन्ग तो सब सुनते होंगे, उसका मतलब ये थोड़ी कि कोई सिंगल नहीं हो सकता। अच्छा, जो लिख रहा होगा रोमांटिक सॉन्ग, अगर वो सिंगल इंसान ने लिखा होगा तो मैं तो उसका विश्वास ही नहीं करूंगा उस पे। So Kartik Aaryan, what is the one thing you want to probably be remembered by? International film festivals, Melbourne awards, box office hits. You know, you've seen it all. Struggle भी देख ली, success भी देख लिया। अब bucket list में, wish list में क्या है? I think I want to make films वो जिन्हें लेगेसी फिल्म्स कहा जाता है। आई थिंक चंदू चैंपियन जिस तरीके से मेरी लाइफ में एक लेगेसी फिल्म है मेरे लिए, एंड आई फील आई जस्ट वांट टू बी रिमेम्बर्ड फॉर दीज एंटरटेनिंग फिल्म्स, एंड आई थिंक वो मैं आगे करते रहना चाहता हूँ। होलसम एंटरटेनर्स, होलसम फिल्म्स जो सबको पसंद आए एंड यादगार रहे सालों तक, हिस्टोरिक रहे, और पिक्चर, और अब जब भी फिल्मों की बात आए तो उन फिल्मों की भी बात हो। वैसे तो प्यार का पंचनामा भी बहुत यादगार फिल्म है, लोगों को डायलॉग्स बहुत याद हैं। भूल भुलैया के जी। व्हाट इज कार्तिक आर्यन्स मंत्रा इन लाइफ? आई थिंक, मतलब ये अगेन वो बोरिंग सा होगा, लेकिन टू बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, that's I think if you'll put me in any room, I'll be the hardest worker, and that's been my thing altogether, कि मैं रुकता नहीं है, मेरा दिमाग रुकता नहीं है, चलता रहता है, काम चलता रहता है। Well, Kartik Aaryan, I would say your mantra, the way I see it, is dream big and have the belief that you can make it come true. For me, that's what Kartik Aaryan stands for. Thank you. And thank you for giving all those people who come from small towns the space to dream big, and उम्मीद करके कि हाँ, सपने सच भी होते हैं। Kartik Aaryan, pleasure to have you on this stage. Thank you very much. Thank you so much. And congratulations, and we salute your hard work and your body of work and the way you're so grounded despite all this success. Fantastic. Thank Big you so round much. of applause, Thank you. ladies and gentlemen, for Kartik Aaryan. Thank you very much. And with Thank you. that, Aisha and Hina, over to you. Thank you, Kartik Aaryan and Navika, for that electric conversation. And with that, ladies and gentlemen, we come to a close of day one here at IDFC First Bank.